Hello everyone, I am Dr. Sonali and from today we are going to start general bacteriology. Individual bacteria I'll be teaching them in separate lectures. Today in today's lecture we'll be just discussing what is general bacteriology. I'll be actually giving you the overview. Okay? Overview of bacteriology. Just consider it like a warm-up lecture for bacteriology. Okay? Let's start with a very interesting case. Now, I have a 22-year-old man who comes with fever for 3 days, painful swelling on his thigh, and pus discharging from the wound. Now, the doctor is suspecting, based on the signs and symptom, the doctor is suspecting it to be a bacterial infection. ठीक है? अब you guys tell me that do you think just by looking at this wound and by the sign and symptoms can I identify the organism? क्या मैं सोच सकती हूँ कि this is Staphylococcus aureus? नहीं. The answer is no. Now just by looking and thinking कि अच्छा staph aureus है, अच्छा एक antibiotic चला देते हैं, can I just randomly start anything, any antibiotic? The answer is no. Then what do we do? Now अगर ग्राम स्टेन का लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें क्या कहा था मैंने, जब भी हमारे पास कोई भी सैंपल आता है, what the first step which we do, we color it. We will do the gram staining. ठीक है? Now after the gram staining is done, what we saw is a gram positive cocci. See, it's purple color, it's round, it's gram positive cocci. अब gram positive cocci को देख के what all organisms will come to my mind? The organisms which will come to my mind are Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, and Micrococcus. Now, you see, being a microbiologist is like being a detective. ठीक है? You don't mug up the bacteria. जैसे डिटेक्टिव क्लूज से केस सॉल्व करते हैं, हम टेस्ट की हेल्प से ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं. So what are the further tests which we'll do after gram staining? Gram staining के बाद we got to know it's a gram positive cocci. After that we'll do a catalase test. अब catalase test क्या होता है? See, catalase test is a test जिसमें bubbles produced होते हैं. क्या produce होते हैं? Bubbles. ठीक है? What we'll do is I'll take organism from the culture plate. ठीक है? उसके बाद उसको slide में रख, either I'll put it on a slide or on the test tube. उसके बाद I'll add your hydrogen peroxide. H2O2 ऐड किया, अगर बबल्स फॉर्म हुआ तो इट्स कैटालेस पॉजिटिव, और अगर बबल नहीं फॉर्म हुआ then it's catalase negative. Okay, simple. Now this one test, this catalase test has helped us in dividing these gram positive cocci in your micrococcaceae and streptococcaceae. ठीक है? Micrococcaceae are those microorganisms which are कैसे दिखते हैं ग्राम स्टेन में? ये हमें देखेंगे either in clusters or in tetrads. Okay, so let's start with micrococcaceae. Now micrococcaceae में सबसे पहले आता है micrococcus. अब micrococcus का structure in your gram stain माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखता है? It looks like this. Four friends standing together. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं tetrad shape. This is how a micrococcus looks in your gram stain. देख रहे हो? It occurs in pair of 4. 1, 2, 3, 4. Just like that, like tetrad. Now, micrococcus is mostly harmless. ठीक है? It's very harmless. Think it like this. M for micrococcus, M for minor. So, minor problems or none. So, mostly harmless. Okay? अब आता है second, that is your staphylococcus. Now, staphylococcus कैसा दिखता है in your gram stain? Staphylococcus दिखता है ग्राम स्टेन में like a bunch of grapes. Now you see here. Can you see? Can you appreciate मैं क्या बोल रही हूँ? Like this is a bunch of grapes. This is how your Staphylococcus will look. Clear? Now, Staphylococcus is the genus, right? Staphylococcus is the genus, and what will come under these? There are various species of Staphylococcus which will come under this genus, which are your Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Hemolyticus. इन सब में सबसे शैतान बच्चा कौन होगा? सबसे शैतान बच्चा है Staphylococcus aureus. ठीक है? अब अगर ये सबसे शैतान है तो हमें इसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा, जैसे क्लास में सबसे शैतान बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं, अगर इस पर नजर रख सके. सेम तरीके से we have to point out Staphylococcus aureus in the lab. कैसे करेंगे? By a test known as coagulase test. अब coagulase test क्या होता है? See,
Coagulase is an enzyme which is present in your Staphylococcus aureus. अब coagulase enzyme का मेन फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है। उससे क्या होता है, इट फॉर्म्स अ क्लॉट अराउंड द बैक्टीरिया। ये हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में। नाउ अब इसे हम लैब में कैसे करेंगे, व्हाट वील डू, वील टेक ईदर अ स्लाइड और अ टेस्ट ट्यूब। कल्चर मीडिया प्लेट से कॉलोनी लेंगे, वील पुट द कॉलोनी ऑन द स्लाइड एंड टेस्ट ट्यूब, एंड अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा था, प्लाज्मा में। वील टेक प्लाज्मा और इसमें प्लाज्मा ऐड करेंगे। अब after adding plasma, if there is clot formation, then it's coagulase positive, and if it's not, it's coagulase negative. Understood? अब Staph aureus तो आ गया coagulase positive. Rest all these species of Staphylococcus which are coagulase negative are called cons. Coagulase negative Staphylococcus. It is just 2 examples. There are many more, but 2 examples to remember: Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus hemolyticus. Clear? अब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इज इट इम्पॉर्टेंट, इज इट अ मस्ट टू रिमेंबर कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या डिजीज कॉज करता है, एंड आई ऑलवेज आंसर इट्स अ मस्ट थिंग टू नो सर। ओके, सो दिस इज द निमोनिक फॉर ऑल द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो एम से क्या आता है, एम से सारा मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर, जैसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके, musculoskeletal. U say your urinary tract. Staphylococcus also causes your urinary tract infection. Clear? अब S से क्या आता है, S से आता है your skin and soft tissue infection. क्या cause करता है skin and soft tissue infection में Staph aureus? It can cause your folliculitis, your carbuncle. T से आ जाएगा toxin mediated. Toxin mediated कौन से disease होते हैं, food poisoning, toxic, okay, toxic shock syndrome. नाउ एस से आ जाता है योर सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस हो गया, बैक्टीरियमिया हो गया, इंडोकार्डाइटिस हो गया। आई से, नाउ आई से होता है इन्फेक्शन ड्यू टू कम्युनिटी अक्वायर्ड एमआरएस, ओके। आर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, निमोटोसील हो गया, योर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इंडिविजुअली हर एक चीज को जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का चैप्टर डिस्कस होगा उस टाइम पे वील डील विद इट, ठीक है। सो दिस वाज योर कैटालेस पॉजिटिव फैमिली। अब बात करते हैं जब बबल फॉर्म हुआ था तब तो देखिए, अब जब बबल नहीं फॉर्म हो रहा है, व्हेन इट्स कैटालेस नेगेटिव, इट इज स्ट्रेप्टोकोकेशिया। नाउ ये जो होते हैं, दीज आर ईदर इन पेयर्स और इन चेन्स, ठीक है। सो ग्राम स्टेन में ये कैसे दिखेंगे, ग्राम स्टेन में ये ऐसे दिखेंगे। क्लियर? नाउ अब हाउ डू यू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो ग्राम स्टेन देख लिया, पर अगर मुझे स्ट्रेप्टोकोकस को आइडेंटिफाई करना है इन द लैब, सो वी आइडेंटिफाई इट बाय इट्स ग्रोथ ऑन ब्लड अगार। वो कैसे, बाय हेमोलिसिस, ठीक है। सी, वील सी कि ईच स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस जो भी आरबीसी हैं ब्लड अगार में, इन आरबीसी के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। So for just the understanding purpose, think of each RBC like a balloon. Okay. Now imagine your 3 types of different streptococci are here. तो first streptococci जो है, it is the gentle one. ये क्या कर रहा है, इन streptococci के हाथ में एक ऐसे छोटा सा पिन है एंड वो हल्का सा बलून को पोक कर रहा है। अब पोक करने पे बलून बर्स्ट नहीं हुआ है, देयर इज नॉट कंप्लीट बर्स्टिंग ऑफ बलून। क्या हो रहा है, हल्की सी हवा निकली है और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, देयर इज ग्रीनिश डिस्कलरेशन अराउंड द बलून। दिस इज अल्फा हेमोलिसिस। द व्हाट इज अल्फा हेमोलिसिस, दिस इज द partial hemolysis which leads to greenish discoloration. This is the example is Streptococcus pneumonia, the partial hemolysis. Okay, then comes your violent hemolysis. कौन ये क्या होता है, दिस इज योर बीटा हेमोलिसिस। अब इमेजिन करो एक स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीशीज है जिसने बहुत ही वायलेंटली सारे बलून्स को बर्स्ट कर दिया है, तो ये पूरा एरिया क्लियर हो गया है, मतलब दिस इज कंप्लीट हेमोलिसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज है वो जो आरबीसी है उसको कंप्लीटली हेमोलिसिस कर रहा है, कंप्लीट लाइसिस कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे क्लियरिंग हो जाएगा,
दिस इज कंप्लीट हिमोलिसिस। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पार्शियल हिमोलिसिस था, पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल लाइसिस ऑफ आरबीसी। अंडरस्टूड? ठीक है। अब इसमें क्या आता है कंप्लीट हिमोलिसिस में, इसमें आता है योर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड ग्रुप बी सी योर बीटा हिमोलिसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, जो कि हम लेटर पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट याद रखना है अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस और गामा हिमोलिसिस। सो एग्जांपल ऑफ बीटा हिमोलिसिस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिए। अभी के लिए पायोजेंस भी याद रखोगे, मोर देन एनफ। ठीक है। अब देयर आर दो स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई जो कुछ भी नहीं करते बलून पे, बस वहां जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपना सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। This is your gamma hemolysis, means no hemolysis. They are not doing anything to this balloon. These are BC. These are the peaceful one, like your enterococcus. ठीक है। Now streptococcus pneumoniae क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, योर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया। अब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस क्या कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस वाइड रेंज ऑफ उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, सुपीरियटिव इन्फेक्शन, नॉन सुपीरियटिव इन्फेक्शन, ये सारे विल डील जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। एंटेरोकोकस क्या कॉज करता है, यूटीआई कॉज करेगा, वूंड इन्फेक्शन कॉज करेगा, ओके, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन। क्लियर? सो दिस वाज योर कैटालेस नेगेटिव फैमिली। अब सी, दिस इज अल्फा हिमोलिसिस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज द कॉलोनी and around the colony what you can see is greenish discoloration, partial breakdown of RBC. beta hemolysis क्या है, beta hemolysis is complete breakdown, complete lysis of RBC. so यहाँ पे clearance हो गया है, RBC यहाँ से हट गया है। ठीक है, this is the beta hemolysis and this is enterococcus, that is gamma hemolysis. okay, this is the no hemolysis, मतलब gamma hemolysis. clear? I hope you guys understood it. Now let's move ahead. अब ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ठीक है, मैंने माइक्रोस्कोपी में देखा, मुझे कुछ ऐसा दिखा। ना ये क्या है, दिस इज योर ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ठीक है, दिस इज पर्पल इन कलर एंड इट इज रॉड, लाइक अ रॉड शेप, सो इट इज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। एग्जाम्स में, वाइवा में वेरी कॉमन क्वेश्चन, दे आस्क यू नेम्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। एमसीक्यू में भी डायरेक्टली भी आ सकता है या फिर एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन किसी केस के नाम पे, केस में भी आ सकता है। सो नाम याद रखना इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द वेरियस ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई विच यू नो? फर्स्ट इज योर नोकार्डिया। ठीक है, सेकेंड ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई इज योर एक्टिनोमाइसिस। ओके, योर एक्टिनोमाइसिस। अब नोकार्डिया क्या कॉज करता है, नोकार्डिया विल कॉज पल्मोनरी इन्फेक्शन, actinomyces will cause actinomycosis. Clear? उसके बाद another gram positive bacilli is your bacillus species. Then comes your clostridium species. उसके बाद क्या हो सकता है, what is this? ये कितनी बार डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आता है। This is Corynebacterium diphtheriae, which causes what? Which causes diphtheria. ठीक है, Corynebacterium diphtherium, sorry. Clear? Now there is a mnemonic to remember this, that is no, A, B, C and D. So it is no, A, B, C, D. And now your picture MCQs में you can get this nocardia का and they'll ask you what it is. इसके clue होता है, nocardia mostly pulmonary infection cause करेगा, तो they'll give you a case and इसका clue है कि it is acid fast. Okay, and it's an aerobe. It's an aerobic bacteria. Actinomyces on the other hand, अगर ये picture आती है तो see, अगर confusion ना हो उसके लिए, this is non-acid fast and it is anaerobe. ठीक है, clear? Now let's move to your another gram positive bacilli which we know, that is your mycobacteria. Now before understanding कि mycobacteria क्या cause करता है,
अंडरस्टैंड माइकोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज द आउटर mycolic acid layer. This layer makes mycobacteria very special. कैसे? I'll tell you. See, this is the thick lipid-rich mycolic acid-containing waxy cell wall. So ये क्या करता है? This waxy cell wall, it forms a protective barrier. Protective barrier for your mycobacteria. Now this protective barrier, ये क्या होता है? This is hydrophobic in nature. That is hydrophobic मतलब water repellent. तो जितने भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे, जितने भी एंटीबायोटिक होंगे, it will have difficulty, they will face difficulty reaching inside mycobacteria. समझ गए? Now coming to a very important point which might confuse some student is, understand here, gram positive mycobacteria is generally considered gram positive bacilli, but due to this thick lipid rich waxy cell, ये this mycolic acid containing this waxy layer, इसके चलते क्या होता है कि जो द ग्राम स्टेन है, द ग्राम स्टेन कैन नॉट पेनिट्रेट इजिली, सो दैट्स व्हाई इट स्टेन्स पुअरली. तो थ्रू ग्राम स्टेन प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, बट इट इज मोस्टली कंसिडर्ड ग्राम पॉजिटिव. ठीक है, अब विजुअलाइज कैसे करेंगे? देखना तो है माइकोबैक्टीरिया को लैब में. So what we'll do, we have another staining for that, which is your Zeal-Nielsen staining. क्या होता है Zeal-Nielsen staining? Zeal-Nielsen staining, it works on the principle of acid fastness. मतलब कि हमने carbon fusion डाला, we'll add carbon fusion and the bacteria will take carbon fusion. But because of this thick mycolic acid, thick waxy mycolic acid, when I'm trying to decolorize this carbon fusion by adding acid alcohol, ये mycolic acid का layer will not allow the acid alcohol to penetrate and to remove my carbon fusion. तो उसके चलते क्या होगा? तो mycobacteria will retain the red color. ठीक है? So Zeal-Nielsen stain, it due to this, in this staining, the acid fast bacteria they appear red in color. And जो पूरा background है slide का, and other bacteria which are not acid fast, what will they appear? They'll appear blue. Blue is the color of the counter stain. आया समझ में? ठीक है? Now mycobacteria, what all comes under mycobacteria? Sorry. In mycobacteria, we have Mycobacterium tuberculosis complex. What does it cause? The very important disease, tuberculosis. Okay. Second, Mycobacterium leprae, which cause leprosy, also known as Hansen's disease. Then we have also non-tuberculous mycobacteria. Clear? Understood? Now, let's come to gram-negative cocci. अब gram-negative cocci क्या होता है? See, अब मैंने ग्राम स्टेन किया दोबारा, ठीक है, एक अलग सी सैंपल आया, उसका ग्राम स्टेन किया. उस ग्राम स्टेन में मैंने देखा कि ऐसे दो, ऐसा कुछ दिखा मुझे. तो ये क्या है? सी, दिस विल बी पिंक. एक तो ये पिंक है तो ग्राम नेगेटिव हो गया, एंड ये राउंड है तो ये कोकाई है, एंड ये साथ में है, इट इज इन पेयर. तो ये क्या हो गए? तो ये हो गए डिप्लोकोकाई. क्या हो गए? डिप्लोकोकाई. So let's meet the two twin brother in your bacteriology, which are your Neisseria meningitidis and your Neisseria gonorrhea. Okay, this is Neisseria meningitidis, which causes what? Meningitis, it's in the name. And second is your Neisseria gonorrhea. Okay. Now, अब देखो, what is the structure of जो Neisseria meningitis, the Diplococcus here. अब जब भी हम वॉर पे जाते हैं या जब भी कहीं भी कुछ काम कर, कहीं कुछ हार्मफुल करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं. ड्राइविंग पे हेलमेट पहनते हैं. वॉर में सोल्जर्स जाते थे, वो भी हेलमेट पहनते थे. उसी तरीके से जब ये बैक्टीरिया अटैक करता है, ये भी एक हेलमेट पहनता है. व्हाट इज दैट हेलमेट? कैप्सूल. ओके, ये खुद तो हेलमेट पहनता ही, और ये किसको अफेक्ट करेगा? हेलमेट पहन के ये करता है ब्रेन के हेलमेट को अटैक. The meninges causing meningitis. ठीक है. अब इसका शेप में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द शेप इट लुक्स लाइक टू हाफ मून with adjacent sides flattened. ठीक है. It looks like two half moon with adjacent sides flattened. That is the Neisseria meningitidis.
सॉरी फॉर द स्पेलिंग। ओके, नाउ नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैप्सूल था, किसमें, मेनिंजाइटिस में। देख ऐसे याद रखो, ये मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है, कैप्सूल पहनेगा तो ये किसको अटैक करेगा, ब्रेन के कैप्सूल को, तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस इज कैप्सुलेटेड। गोनोरिया इट डजंट हैव अ कैप्सूल, हियर वी हैव नो कैप्सूल, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे, दिस इज ऑल्सो डिप्लोकोकाई, बट दिस डिप्लोकोकाई इज लाइक किडनी बीन शेप्ड, यू सी, kidney bean shaped, ठीक है, facing each other. This is your Neisseria gonorrhea. Now, this is your diplococci in for your Neisseria meningitis. कैसा सैंपल आएगा, CSF का सैंपल आएगा। अगर पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस के सिम्टम है, फीवर है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, फोटोफोबिया है, ये सब है, तो क्या होगा, CSF का सैंपल आएगा, इन विच यू विल सी व्हाट, यू विल सी डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव, sorry, you will see the gram negative diplococci with capsule, ठीक है। और नाइसीरिया गोनोरिया क्या है, नाइसीरिया गोनोरिया क्या करेगा, इट विल कॉज गोनोरिया, तो क्या सैंपल आएगा, यहाँ पे क्या सैंपल आएगा, द सैंपल विच विल कम हियर इज योर यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे कैप्सूल दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है, नो कैप्सूल। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नाइसीरिया गोनोरिया इज इंट्रासेल्युलर, ठीक है। मेनिंजाइटिस की स्पेशल बात क्या थी, इसमें कैप्सूल था, गोनोरिया में कैप्सूल नहीं है, तो ये इंट्रासेल्युलर दिखेगा, ओके, क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर विथ योर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। अब देखो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बहुत ही बड़ा लिस्ट है, बट टुडे वील स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ योर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। कौन सी है वो फैमिली, द फैमिली इज योर इंटेरोबैक्टीरियेसी, ठीक है। दिस इज द वेरी फेमस इंडियन जॉइंट फैमिली। नाउ अब इस फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, कुछ बहुत ही बुरे हो सकते हैं, कुछ कभी अच्छे कभी वैसे हर फैमिली में होते हैं, ओके। लेट्स मीट आर इंटेरोबैक्टीरियेसी। नाउ these are the first three members which we'll be talking about, your E. coli, your Klebsiella and your Proteus. अब ये सी, ये इतने चिल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतने खुश क्यों हैं, बिकॉज ये इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में दे आर कॉल्ड कॉलिफॉर्म्स, कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो ये दे आर लाइक दोज फैमिली मेंबर्स जब तक घर में हैं तब तक शांति से रहेंगे, जब तक इंटेस्टाइन में है दे आर वेल बिहेव, दे आर एवरीथिंग इज फाइन, बट द मोमेंट इन्हें घर से बाहर निकाल दो दे विल क्रिएट chaos. So if these Proteus, Klebsiella and E. coli they enter, imagine they are removed from the intestine, they enter your urinary tract, what will they cause, they will cause chaos. What is that chaos, that chaos is UTI, okay. And remember important point for your MCQ, your uropathogenic E. coli, the one causing UTI, okay. Uropathogenic E. coli is the most common cause of UTI in all ages, ठीक है। अब E. coli का एक और important point है which you should know is, अब see ये E. coli तो खुश है इंटेस्टाइन में, but there are some cousins of E. coli जो इंटेस्टाइन में भी बहुत ही chaotic हो जाते हैं, बहुत ही तहलका मचाते हैं। वो कौन से हैं, दे आर डायरियोजेनिक, ओके, डायरियोजेनिक E. coli, एज द नेम सजेस्ट, क्या कॉज करेंगे, डायरिया कॉज करेंगे बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स। देयर आर लॉट्स ऑफ डायरियोजेनिक E. coli we will be dealing with जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, समझ में आ गया। नाउ ये तो थे थोड़े ओके मेंबर, नाउ मिलते हैं सबसे शैतान मेंबर से, Salmonella and Shigella, the enteric pathogens. Shigella क्या कॉज करता है, Shigella is the cause of bacillary dysentery, okay, bacillary dysentery. And Salmonella, well, Salmonella is further divided into typhoidal Salmonella and non-typhoidal Salmonella. Typhoidal Salmonella क्या कॉज करता है, enteric fever, योर टाइफॉइड फीवर, ठीक है। नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला क्या कॉज करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन ह्यूमन बीइंग, ओके, क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ
ये तो हो गए कुछ मेंबर्स, देयर आर मेनी अदर मेंबर्स आल्सो ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी। कौन से हैं वो? लेट्स सी। अब देखो, हमने इकोलाई देख लिया, हमने साल्मोनेला देख लिया, शिगेला देख लिया, क्लेप्शियला देख लिया, सिट्रोबैक्टर इज आल्सो अ पार्ट, वी हैव इंटेरोबैक्टर आल्सो। इंटेरोबैक्टर अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इज वेरी सिमिलर टू क्लेप्शियला। देन वी हैव प्रोटियस। प्रोटियस क्या कॉज करता है? प्रोटियस यूटीआई कॉज करेगा, प्रोटियस वुंड इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। देन वी हैव सेरेशिया आल्सो हियर। सेरेशिया, एज फॉर सेरेशिया, सेरेशिया इज मोस्टली सैप्रोफाइटिक, सॉरी, so sorry for the spelling, it's saprophyte, it's present in environment, okay। तो ये मोस्टली हॉस्पिटल अक्वायर्ड opportunistic infection cause करेगा। another most important very important member of Enterobacteriaceae family, जो फैमिली फोटो में नहीं है, is your Yersinia pestis। ये क्या कॉज करता है? you all should know Yersinia pestis is the bacteria which cause plague, ओके, क्लियर। नाउ हर फैमिली की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सेम होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑल लिविंग टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ फैमिली। इंटेरोबैक्टीरियेसी में ऐसा क्या है दैट दे आर कॉल्ड इंटेरोबैक्टीरियेसी? वेल, फर्स्ट पॉइंट इज दे ऑल आर ग्राम नेगेटिव bacilli. Second point, all are catalase positive, they are oxidase negative, okay, and they reduce nitrate to nitrite, and they ferment glucose, that is ferment sugars. These are the features, these are the characteristics which is common to your all Enterobacteriaceae. Clear? Now let's move, this was Enterobacteriaceae family यहीं तक। अब हम जा रहे हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखने। नाउ अभी तो हमने देखा कि Enterobacteriaceae फैमिली फर्मेंट कर रहा था ग्लूकोज को हैप्पीली। नाउ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो अगर हम उसे शुगर देते हैं तो उसे फर्मेंट नहीं करेगा, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा? वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय ऑक्सीडेशन। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ठीक है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया व्हिच यू शुड नो हियर इज स्यूडोमोनास, एसिनिटोबैक्टर एंड बर्कहोल्डेरिया। और ये तीनों जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ योर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। we'll start with Pseudomonas. Now Pseudomonas is the king of hospital acquired infection. Pseudomonas is very notorious, ठीक है। जो Pseudomonas होता है it is very, you know, ये कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? ये पाइप्स में, ट्यूब्स में, that's why it is a very, you know, important organism in your ventilator associated pneumonia। ये मिलेगा बर्न वूंड में, जितने भी बर्न के पेशेंट्स आते हैं उसमें Pseudomonas aeruginosa is a very common organism to be isolated। your surgical site infection, Pseudomonas aeruginosa can happen, and your patients who have cystic fibrosis, उनमें भी Pseudomonas का इन्फेक्शन होना एक हाई चांस होता है, ठीक है। This was Pseudomonas. It's opportunistic. It survive everywhere in your pipes, in your tube. Why? ये बायोफिल्म फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई ये पाइप्स एंड ट्यूब में जाके सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। दिस वाज Pseudomonas। अब अगर Pseudomonas notorious किंग है आईसीयू का, देन वी हैव Acinetobacter which is like the silent ninja। क्या है Acinetobacter? It's a silent ninja killer। So sorry, it's the silent ninja, ठीक है। ये क्या करता है? ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, ये टारगेट करता है पीपल हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इट वेट्स टिल योर इम्यूनिटी वीकन्स एंड तभी अटैक करता है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज है Acinetobacter baumannii। क्लियर? So mostly you target your immunocompromised patient with weak defenses. They have the perfect opportunity for this. Clear? That is your Acinetobacter। फिर आता है बर्कहोल्डेरिया। अब बर्कहोल्डेरिया में दो स्पीशीज होते हैं, बर्कहोल्डेरिया सिपेशिया और दूसरा होता है बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमलाई विच कॉजेस मीलियोडोसिस। अब वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्यूडोमलाई का दिखता है ग्राम स्टेन में, दिस इज द सेफ्टी पिन अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस? सेफ्टी पिन देखा है कैसा होता है? दिस लुक्स लाइक सेफ्टी पिन। सो दोनों एंड पे
डार्क स्टेन होता है एंड बीच में लाइट स्टेन होता है, तो इट लुक्स लाइक सेफ्टी पिन. ठीक है. व्हाट डज pseudomyelite cause? It will cause melioidosis. और melioidosis has a very wide clinical manifestation. Local भी हो सकता है, systemic हो सकता है, can cause bacteremia, bloodstream infection, fever, chills, lung abscess, liver abscess. It affects lungs as well. You know, severe melioidosis with pneumonia, multilocal patchy infiltrate. It can occur like that also. Because of such a wide clinical manifestation, melioidosis is also known as the great mimicker. ठीक है. अब इतने सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये किसी ना किसी को तो मिमिक करेगा ही. इट कैन मिमिक ट्यूबरकुलोसिस, इट कैन मिमिक योर एब्सेस, इट कैन मिमिक निमोनिया. ठीक है. ओके. नाउ let's see some other gram negative bacilli. Now there is something known as your fastidious gram negative bacilli. अब fastidious क्या होता है? See, fastidious वो नहीं ऑर्गेनिज्म होता जो फास्ट होता है. It's a very common misconception. Fastidious वो ऑर्गेनिज्म होते हैं which have a complex nutritional requirement. ठीक है. अब कौन से fastidious GNB है which you should know? Haemophilus species में क्या आता है? Haemophilus influenza. उसके बाद आता है Bordetella pertussis, the common cause of whooping cough. Clear? उसके बाद मिसलेनियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्पाइरोकीट्स में अंदर क्या आएगा? योर ट्रिपोनिमा पैलिडियम which is the causative organism for syphilis. Then Borrelia species, Leptospira interrogans. उसके बाद we have rickettsia causing rickettsial fever, rickettsial diseases. We'll be dealing with this later. Then we have also Vibrio cholera, which causes watery diarrhea. Okay, these are curve-shaped gram-negative bacteria with motility. And कौन सी motility होती है? Shooting star motility, darting motility बोलते हैं. ये बाद में पढ़ेंगे जब भी just to give you some idea. ठीक है. Now let's start with anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria, see, जैसे humans को ऑक्सीजन पसंद होता है, जरूरी नहीं कि सारे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन पसंद हो. ठीक है. ऑक्सीजन इन सम बैक्टीरिया, सॉरी, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस समथिंग नोन एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. ठीक है. जैसे कि H2O2 हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया. अब एरोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है? टू डील विद दिस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, योर एरोबिक बैक्टीरिया हैव समथिंग नोन एज दिस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम. अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जैसे योर catalase enzyme हो गया. Okay, there are many more. Just to give you an example, your cytochrome oxidase ये क्या करता है? ये reactive oxygen species को neutralize कर देता है. तो ये क्या होंगे? यहाँ नहीं पहुंचाएंगे. वहीं पे anaerobic bacteria, it lacks reactive oxygen species. ठीक है. So since it's lacking reactive, it lacks cytochrome oxidase. ठीक है. इसके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नहीं है. इट हैज नथिंग टू न्यूट्रलाइज दिस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. तो क्या होगा? ये देखो, ये सारे क्या कर रहे हैं? इसको घेर रहे हैं. नाउ दे आर रेडी टू अटैक एंड दे विल किल द बैक्टीरिया. So that's why this is how anaerobic bacteria are function. ठीक है. अब anaerobic bacteria में क्या क्या आता है? सबसे important species है the Clostridium. Now Clostridium are gram-positive bacilli with bulging spores. ठीक है. See, the spores are tough-resistant endospores which help them in surviving. ये spore terminal भी हो सकते हैं, subterminal भी हो सकते हैं. ठीक है. अब Clostridium में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है Clostridium perfringens. क्या कॉज करता है Clostridium perfringens? It causes gas gangrene. ठीक है. उसके बाद आता है Clostridium tetani. As the name suggests, क्या कॉज करेगा ये? It will cause tetanus. Then आता है Clostridium botulinum causing botulism. And your Clostridioides difficile, it causes pseudo membrane colitis. Now, जो pseudo membrane colitis ये जो होता है, it is due to overuse of antimicrobial drugs in the hospital setting. Clear? Now, ये तो था sporing anaerobes. अब आते हैं non-sporing anaerobes. अब non-sporing anaerobes कौन से होते हैं? The name which you should remember, important one is Bacteroides fragilis. ठीक है? Most common commensal in human intestine. ठीक है? Clear? Now, that's it. Thank you.
Individual bacteria will be dealt later.